Hello, future officers. Welcome to Decoded. Today we are going to take UPSC CSAT PYQ solution for the topic of remainder, and the year would be 2024, 23, 22, 21, and 20. In 2024, unfortunately, no direct question was asked from the remainder thing. So we'll start with 2023 paper. Without wasting any time, let's start. Okay, you need to take out 2023 paper, set A, question number 7. If you do not have the paper, I am going to zoom the question for you. You can see it from here. Okay, the question goes like, what is the remainder when 85, 87, 89, 91, 95 and 96 is divided by 100? So I would like to suggest you one thing, that before watching this remainder PYQ solution, you should watch the concept of remainder video in this channel and the number of zeros video, because in some of the concept number of zeros का concept भी use होगा और factorization भी देखें, factorization का भी use हो सकता है. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. So it's like 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96. Now we know one thing, that 5 into 2 is equal to 10. That 1 5 and 1 2 would make 1 0. So 2 5s and 2 2s would make 2 zeros. That means 25 into 4 is equal to 100, isn't it? So if in this expression we can make 100, then it would be completely divided by this. So let's see if we can do it. So let's try to solve this question. It says that what is the remainder when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 divided by 100. Okay, so 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 divided by 100. Okay, so I can see one thing from here, that I can get 1 5 from here and 1 5 from here, and this 96 if you divide it by 2, 96 divided by 2, you get 2 4s are 8. Okay, you write it down like this. 96 2 times, it would be 4, and this is your again 2, so we can get 2 2s from here. You can see that. So I can say that I'm getting 100 from here. So this 100 would be cancelled by 100, so remainder would be 0 in this case. So the answer would be A. You're getting? So what here we have done is, since we can get 2 5 and 2 2s, so we can make 100 in the numerator. So if 100 is there in the numerator and denominator is also 100, so those 100 would get cancelled out and we'll get remainder as 0. 1 5 I can get from here, 1 5 I can get from here, and 96 if I expand it, I will get this 2 2s are available to me, isn't it? So 2 2s are already available to me, so I need not see it further. So it gives me my 100, so I'm able to solve this question. Now let's move on to next question, that is question number 27 of the same 2023 paper, set A, question number 27. Okay, this question is on a difficult side, okay, and we'll be needing more space for it. So this question is like, a number is formed by writing 9 for 99 times. Okay, what is the remainder if n is divided by 13? Okay, it is saying a number is there, but is 9 is written 99 times. Okay, that is divided by 13. So what would be the remainder? Okay, so here we would not be able to divide it completely, but we can check that, because every number, every number has a property of being repeating its remainders, or every number has a property of cyclicity. Matlab that number exhibit the same type of property after some time. We know that. So we'll try to see it. First of all, let's try by doing this, that I divide 9 by 13 and let's see what is the remainder. So it would be 9 only, because 13 is smaller than 9, 13 is bigger than 9, so remainder will be 9, it cannot be divided. We have already done such concept in the video on remainder. You go and watch that video first before coming to these PYQ solutions. And 99 divided by 13 would give me what? 8 remainder.
You can divide it and check. Then if I take 999 and divide by 13, I get a remainder of 11. Further, if I divide 9999 4 times by 13, I get a remainder of, you can say, 2. If I do it 5 times, I get a remainder of 3. And if I do it 99999 6 times, okay, by 13, I get a remainder of 0. You can check it yourself. If you want to check, you can check it yourself that this would yield a remainder of 0. This would yield a remainder of 0. Now if I write nine 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 1 2 3 4 5 6 7 times and divide it by 13, then my remainder comes 9. If I do it by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 times I will do. Let's say it's 8 times 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 13, then I again get a remainder of 8. And if I do it 9999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 by 13, I get a remainder of 11. So I can see that 1 2 3 4 5 6, after dividing 39 by 13, after every 6 you can say after every 6 times, this process is getting repeated. For example, if I divide 1 9 by 13, I get 9. If I divide 2 9s by 13, I get 8. For 3, I get 11. For 2, I get for 4, I get 2. For 5, I get 3. For 4, I get 3. For 5, I get 0. And for again that process is repeating. After this, I'm again getting 9, 8, 11, and then 2 and 3 would come. So I can say that after every 6 time, I would be getting remainder as 9. So I would not do anything. I would do just one thing. So 9 is written 99 times. Okay. So after every sixth time, we are getting the remainder as same. So I would do one thing, that I would divide it by 6 and see what the remainder comes. 6 one time, 6, 3, 9, and 6 is 36. And this is your 3. Okay. So we have seen one thing, that 9 by 13 is 9, and 99 by 13 is your 8, and 99 by 3 times 9 is your 11. So since my remainder is 3, so after every 6, what would happen is I would get the remainder as same. At sixth place we have seen the remainder would be 0. For example, what happens is कि जब 6 बारी हुआ तो हमने देखा था अभी कि रिमाइंडर 0 आया, तो हमने क्या किया, इस 99 को 6 से डिवाइड करते, तो जो भी अब रिमाइंडर मेरे पास बचेगा यहाँ पर 99 को 6 से डिवाइड करने के बाद, उतनी ही बार मैं काउंट करके जहाँ पहुँचूंगा तो मेरा 99 टाइम्स पे भी वही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि ये 96 पे मेरा उतना आ गया था, तो मैं 3 बार 97, 99 मतलब 96 पे जो है वो मेरा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 99 जो 9 जो है जब 96 टाइम्स होगा तो मेरा 0 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद में जब ये रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहे हैं, मैं 3 और काउंट कर लूँगा इसमें, तो जैसे कि फिर आपका आ जाएगा 97 पे आपका आ जाएगा रिमाइंडर 9, 98 पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा 8, और 99 पे आपका रिमाइंडर हो जाएगा 11। सो आपका आंसर होगा 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें आप। ठीक है, आप इसको फिर से समझो। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है हल्का सा, वैसे बड़ा आसान है पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि अगर मैं 9, अब मुझे पता नहीं है कि क्या होगा इसमें, तो मैं क्या करूँगा, एक एक 9 को चेक करता जाऊँगा, और हर नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ टाइम बाद रिपीट करना शुरू करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ को। तो 9 को 13 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 ही आएगा, क्योंकि 9 13 से छोटा है। फिर आप 99 को ले लें, इसको 13 से डिवाइड करें, आप चेक करेंगे इसका रिमाइंडर 8 आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं उसे। फिर आप 999 को आप डिवाइड करें 13 से, आपके पास 11 रिमाइंडर आएगा। फिर आप 4 टाइम्स 9 को लें और उसको 13 से डिवाइड करें, आपके पास रिमाइंडर आएगा 2। फिर आप 9 को 5 टाइम्स लिखें, उसके बाद 13 से डिवाइड करें, आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। फिर आप 9 को
6 टाइम्स लिखें, 13 से डिवाइड करें, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 11, ठीक है। तो 6 टाइम यहाँ हो गया। अब आप 9 को जो है आप लिखो 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 बाय 13 कर रहे हो आप, फिर से 9 आ जा रहा है, ठीक है। आप इसको 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स कर रहे हो, आपके पास फिर से 8 आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 6th के बाद आफ्टर एवरी 6th 9 इट इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ, ठीक है। सॉरी, यहाँ 0 आएगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर एवरी 6th 9, जैसे यहाँ तक 6 बार ही हो गया, ठीक है, यहाँ 6 टाइम्स हो गया यहाँ तक, तो आफ्टर एवरी 6th 9 द रिमाइंडर इज गेटिंग रिपीटेड इटसेल्फ, ठीक है। आप उसके आगे करोगे इसको, जैसे 10 टाइम्स कर लोगे तो फिर से आपका ये आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर नाउ आई कैन से वन थिंग कि हर 6 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं 99 को खुद को 6 से डिवाइड कर दूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा मैं उतनी बार उसको काउंट कर लूँगा, क्योंकि 6th पे तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। उसके बाद मैं 3 और काउंट कर लूँगा, जैसे मैं आपको समझाते हैं। अब 1 टाइम्स लिखिए 9, यहाँ आप इसको लिखेंगे, सॉरी 6, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 9, ये 6 है 36, तो आपका रिमाइंडर 3 है। आप एक चीज़ देखो कि जब मैंने 6 बार काउंट किया तो मेरा 0 आ गया, ठीक है, और उस 6 के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से मेरे पास 9 8 11 12 11 2 और 3 और 0 फिर से आ रहे हैं, वो रिपीट होता जा रहा है साइकिल। तो जब ये साइकिल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हर 6th के बाद वो साइकिल रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 99 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो जितना रिमाइंडर मेरे पास बचेगा उसके बाद मैं काउंट कर लूँगा। तो अब 99 में से आप 3 माइनस करो एक बारी, तो आपके पास 97 आता है। तो मेरे का मतलब है कि 97 पे मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। जब 9 97 टाइम्स होगा, जब 9 97 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फिर से अब 0 रिमाइंडर आने के बाद क्या हो रहा है कि फिर से 9 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर से 8 आ जाएगा, फिर 11। तो बस मुझे 3 बार और काउंट करना है। तो मेरा मतलब 98 पे आपका आ जाएगा 9, 96 पे, 96 टाइम्स पे 0 आएगा, तो 97 पे आपका आ जाएगा 9, 98 पे आपका आ जाएगा 8 और 99 पे आपका फिर से 11 आ जाएगा रिमाइंडर। तो आपका आंसर है ए, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 of this same paper. Some questions are tricky, but more or less easy questions are asked. If you know the concept, you can easily do it. Would not be facing any sort of difficulty. The question goes like that: 2 to the power 192 is divided by 6. So what would be the remainder? Okay. So हम इसको लिख लेते हैं अब फर्दर, जैसे कि मैं इसको लिखूँ 2 इंटू 2 टू द पावर 192। मैं लिख सकता हूँ इसे, अगर मेरे पास बेसिस सेम है, जैसे कि a इंटू ए है, मेरे पास a की पावर x थी और b की y थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी a था ये भी, a इंटू a टू पावर x, तो लिख सकता हूँ a टू पावर x प्लस वाई, इजंट इट। लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो इसको भी 2 को भी मैं 2 टू पावर 192 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 191, बिकॉज ये हो जाएगा ऐड करके 192 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो मेरा 2 से 2 कट गया, तो ये मेरा बन गया आपका 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 3। सो जब भी आपका जो इसमें फाइनल आंसर आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक 2 को हटा दिया है। तो याद रखिएगा, जो भी आपका फाइनल रिमाइंडर आने वाला है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो भी आपका फाइनल रिमाइंडर आने वाला है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपका ये करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। ये आपका 191 है, ये 2 टू पावर 191 है, ठीक है। तो आप याद रखें कि यहाँ पर आप जो फाइनल आंसर आपका रिमाइंडर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका करेक्ट आंसर आ पाएगा, ठीक है। अब ये आपका ये हो गया 2 टू द पावर 191 बाय 3। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर मेरे पास है ax माइनस 1 टू द पावर a टू द पावर कोई n है, तो अगर उसमें n ऑड आ जाता है मेरे पास, ये हमने जो वीडियो करी है कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर की, उसमें ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अगर ये n ऑड आ जाता है मेरे पास तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा आपका a माइनस 1, ठीक है। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, 3 को मैं लिखता हूँ, 2 को लिखता हूँ 3 माइनस 1 टू द पावर
191/3, ठीक है। अब यहाँ मेरा n क्या है, n मेरा ऑड हो गया, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा a क्या है, 3 है, a मेरा 3 है यहाँ पर और x मेरा 1 है, तो a इज इक्वल टू 3 है, तो रिमाइंडर होगा a माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब मैंने कहा था कि जो फाइनल आंसर आएगा आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने एक 2 हटाया तो वही आंसर होगा, 2 इंटू 2, तो ये आपका ये 4 आ जाएगा, इसका आपका आंसर है 4 यानी कि डी। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020, योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल टेक आउट 2022 पेपर। क्वेश्चन नंबर 2022 पेपर निकालिए, सेट ए 2022 का पेपर निकालेंगे, सेट ए निकालेंगे उसमें आप, ठीक है, 2022 सेट ए। ओके, सो अब इसमें आप चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 पे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे इसमें हम, 2022 क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बिना कंसेप्ट के, आप अगर फैक्टराइजेशन भी जानते हो नॉर्मल तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 58 आपका है, ये है, देखो इसका कंसेप्ट को देखो, 91 इंटू 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 डिवाइडेड बाय 1 2 16, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96, 97 इंटू 98 इंटू 99, हमने इसको डिवाइड कर दिया अपना किससे, 1261 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप देखो 1261 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 13 इंटू 97, सो इसका मतलब इसमें और इसमें एक सेम फैक्टर आ गया कॉमन, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको x मान लो और ये नीचे वाला नंबर है, तो मतलब इस x में एक फैक्टर है इसके जैसा 97 है जो, ठीक है ना। तो जब इसमें एक फैक्टर है और इसमें भी 97 तो 97, तो ये मतलब आपस में डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 97 से 97 कट जाएगा तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका आपका जो है वो आंसर है वो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि इसमें एक 97 फैक्टर है और इसमें भी एक 97 फैक्टर है, तो जब दो नंबरों में कॉमन फैक्टर होते हैं तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो x डिविजिबल हो गया 1261 से, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब आप निकालो क्वेश्चन पेपर 2021 का, जिसमें आपने निकालना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2021 क्वेश्चन नंबर 5, टेक आउट क्वेश्चन नंबर 5 और 2021 पेपर सेट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इट गोज लाइक 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज द रिमाइंडर। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है डिविजिबिलिटी वाले में, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर हमें पता है अगर किसी को भी हम 10 से डिवाइड करते हैं नंबर को, तो हम क्या पूछ रहे होते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो अगर किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो उसका यूनिट डिजिट है वही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने वाला कंसेप्ट इसमें चेक करना है और डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमने इसमें। तो आप एक, देयर इज वन कंसेप्ट दैट व्हेनेवर एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाटएवर द रिमाइंडर कम्स दैट इज द यूनिट डिजिट। तो इसमें भी जो यूनिट डिजिट आएगा वही है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम 3 की पावर 2019 का यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, वही आंसर होगा। नाउ वी नो वन थिंग, कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है यूनिट डिजिट का, तो आप यूनिट डिजिट का वीडियो जाकर देखो, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वी नो वन थिंग, अगर किसी भी नंबर की पावर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी रिमाइंडर आता है वो हम उस नंबर को दे देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उस नंबर को पावर 4 दे देंगे, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप यूनिट डिजिट की वीडियो जाकर देखो इसी चैनल पर, ठीक है। तो आपका आएगा 4 5 20 10 0 1, तो आपका आएगा, और ये आपका यहाँ 0 1 और ये आपका 9, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 16 एंड 4 3 12 4 5 20, तो 4 4 टाइम्स 16, तो योर रिमाइंडर इज 3 हियर।
So you can write down a 3 to the power 3. Now you can see 3 into 3 into 3. So whatever the unit digit would come for this, that would be your answer. So it's 27. So okay, 3 3 is a 9 and 27 to 7. Unit is 7, so your answer is C7. Now this is done. Now you will take out the 2020 paper set A and we'll try to see what question is asked from that. 2020 set A and your question number is question number 56. Take out question number 56 of 2020 paper. Okay, so when we were discussing about the unit digit, at that time we were also trying to discuss this question, but we left it there because it required us to know the concept of remainders at that time. Okay, so what we'll do here is we'll try to solve this question again now. Okay, so let's begin doing it. The question goes like that: 51 into 27 into 35 into 62 into 75. Okay, 51, 27, 35, 62, 5 by 100. So अगर मेरे पास यहाँ पे ऊपर 100 बन जाता है तो कंप्लीट डिविजिबल होता, पर ये पूरा 100 नहीं बन पाएगा क्योंकि मेरे पास एक ही 2 मिलेगा मुझे. जैसे कि जो 2 मिलने वाला है वो 62 से मिलने वाला है, तो आप 62 को करके देख लो. 62 2 टाइम्स 3 और 1, यहाँ 31 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है. तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही 2 मिल रहा है, पर 5 तो 2 टाइम्स 5 तो मिल जा रहे हैं, पर 2 सिर्फ एक ही मिल रहा है. तो यहाँ पे 100 में नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, तो मेरा ये 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा. तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. अब जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये 25 से हुआ ना, तो मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसको 25 से मल्टीप्लाई करूँगा वहाँ पे. ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करूँगा जो भी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 25 मैंने रिमूव कर दिया है, तो आप इसको 25 ऊपर लिख लो. जो भी आंसर है उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, आपने याद रखना है. अब ये आएगा 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 3/4. ठीक है, ये आपका आ गया. अब ये आपका फर्दर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा और ये आपका 31 हो जाएगा. तो मेरे पास एक 2 और आ गया. मेरे को इस आंसर को फिर से 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा जो भी मेरा आंसर आएगा. तो मुझे कुछ नहीं करना. 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 डिवाइड बाई 2. अब हमने देखा हुआ है कि जब ऐसे दिया हो आपको, तो जो इंडिविजुअल नंबर है उनके रिमाइंडर चेक कर लें आप, और उससे आपका आंसर बन जाएगा. जैसे कि आप देखोगे कि 50 में आपका 25 टाइम्स कट जाएगा तो 1 बच रहा है यहाँ पे. 27 में आपका 26 टाइम हो जाएगा ये 13 पे, 13 टू द 26, तो 1 आएगा रिमाइंडर. इसमें आपका 17 टाइम्स हो जाएगा, तो 17 टू ज़ा 34 होगा, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है. 31 में भी 1 टाइम्स आएगा और यहाँ भी 1 टाइम्स आएगा. ठीक है, तो आपका आ जाता है 1 बाय, मतलब आपका ये 1 बाय डिवाइड बाय 2 था, तो 1/2. तो ओवरऑल रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, पर मेरे को क्योंकि मैंने यहाँ से 50 रिमूव किया तो मुझे इसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये होगा 50, रिमाइंडर ओवरऑल 1 आया, 50 इंटू 1, जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ 50. ठीक है, तो यार करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. सो विद दिस वी आर डन विद द UPSC सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर. From 2024 to 20 we have done all the question on the concept of remainder. With this video was the video of concept of remainder also, then you will be completely thorough with the concept of remainders, and then I'll be providing you with the test on remainders and rules of divisibility. Do that test, then your concept will again get brushed up. If you'll keep, the only way to perfect yourself in mathematics is do mathematics every day. So every day you give your 1 hour to Decoded, and I promise you that you are going to clear the UPSC CSAT 2025 paper. You in the examination you would not have to think that ये क्वेश्चन मुझसे होगा या नहीं होगा. आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए. चलिए, थैंक यू, गुड लक, स्टडी हार्ड, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एन ऑफिसर. थैंक यू.